we are starting with memories of childhood. Yes, ma'am. When we talk about the word memories of childhood memories जो होती हैं, they are the most cherished form of our life. मतलब अगर हम लोग किसी भी चीज को इतना लेंगे ना, तो जो सबसे ज्यादा हमें हमारी पूरी लाइफ में जो हमें याद आता है ना, वो होता है हमारे बचपन की चीजें. When you grow up, most of the time, I may not be remembering what I did when I was a teenager, but I would definitely remember what I did as my childhood. वो जो memories होती है ना, they always cherish us. But if in the childhood, if we have मतलब कि we have encountered, we have faced some challenge. अगर हमने अपने बचपन में किसी ऐसी चीज को ऑब्स्टेकल को हमने फेस किया है, एनी ऑपरेशन, एनी एक्सप्लॉयटेशन, दैट वुड ऑल्सो रिमेन ऑन योर ब्रेन फॉर एवर. वो भी आपकी जिंदगी में हमेशा रहेंगे. So that is why we always say that the childhood should not be traumatized. जो हमारा चाइल्डहुड है, दैट शुड नॉट बी ट्रॉमेटाइज्ड. क्योंकि अगर ट्रॉमेटाइज रहेगा तो देन व्हाट विल हैपन, इट वुड हैव अ लॉन्ग इम्पैक्ट ऑन आवर पर्सनालिटी, नॉट ऑन लाइफ बट ऑन आवर पर्सनालिटी. हमारी जो पर्सनालिटी है उसी पर उसका जो है एक लॉन्ग इम्पैक्ट रहेगा. एंड मे बी समटाइम्स दिस इम्पैक्ट मे नेवर इवन गो. इफ यू टॉक अबाउट पीपल जिनके मतलब कि दोज हु आर एग्रेसिव, जो लोग काफी एग्रेसिव रहते हैं, या फिर मे बी दे आर मतलब कि दे आर नॉन सोशल, अगर हम उनको देखते हैं दे आर नॉन सोशल, तो कहीं ना कहीं इट माइट बी द चाइल्डहुड ट्रॉमा दे मस्ट हैव सीन. तो दैट इज व्हाई वी मस्ट एंश्योर कि जो हमारा चाइल्डहुड है दैट शुड ऑलवेज बी सेफ फर्स्ट. सेकेंडली हमारा जो the second thing is, there are certain things which may not be apparent to you, but they exist in this world. यहां पर भी रहते हैं और दूसरी जगहों पर भी रहते हैं. It is not that only it might be in your country, it might be some kind of exploitations might be there everywhere. ये जो हमारा चैप्टर है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, दिस इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. इनमें आपके 2 पार्ट्स हैं. जो पहला पार्ट है, इट इज अबाउट अ लैटिन अमेरिकन गर्ल हु मस्ट हैव अंडरगॉन सम trauma or maybe some kind of hatred when she was a child. And the second one is from our own country, हमारी ही कंट्री का है, जहां पर द चाइल्ड हैज एनकाउंटर्ड द इविल ऑफ कैस्टिज्म. तो 2 आपके स्टोरीज हैं. वन इज ऑफ जित कला सा एंड द सेकेंड वन इज ऑफ बामा. पेपर के अकॉर्डिंग सबसे पहला हम लोग क्वेश्चंस को बताते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन which you may have is कि what are the similarities. इन दोनों की लाइफ का क्या मतलब कि what are the similarities, and the similarities are the suppression that they have undergone while they were a child. And how did they react to their situation is the answer. आपके पेपर में आता है कि what are the similarities that Zitkala, Sa and Bama had encountered and how they faced their situations respectively. So as I said, the similarity is
both of them had undergone a traumatized childhood, you can say, or they had seen something which we can say an indifferent behavior of the society. अगर हम जितकला सा को लेकर चलते हैं तो द वर्ड वी यूज फॉर हर इज रेसिज्म, color differentiation, and for Bama it is casteism. तो लेट अस नाउ स्टार्ट विथ जितकलासा, जो पहला हमारा स्टोरी है और छोटी सी स्टोरी है, एंड दैट इज कटिंग ऑफ माय हेयर. The story is cutting of my hair. When she was a child, she was separated from her mother and she had been sent to a British Indian school. Means it was a convent, it was a kind of convent school. But यहाँ पर जो Indian है, it is American Indian, not the Indian we, the American Indian. Now, when she entered this boarding school, मतलब उसने लिखा है Valley of Apples, मतलब वो पूरा आपका सर्दियों वाला जो एरिया वहां पर. When she entered the school, so she found the behavior of the people management very indifferent towards these kinds of children. That was an English speaking school. वो जो school था वो English speaking था, and she was not an English, she was not aware of English. इसको English नहीं आती थी. When she entered the first day, मतलब उसने अपने 2 दिन का जो है रिकाउंट किया है. शी हैज रिकाउंटेड दोस इंसिडेंट्स which happened with her. The first day they had gone for a dinner, and while they had gone for a dinner, they had maybe a gala meeting. The next day what happened is she had to enter the dining hall. उसको डाइनिंग हॉल जाना था. नाउ डाइनिंग हॉल के जो है देयर वर सम रूल्स, और वो हॉस्टल में होते हैं. इसके लिए मतलब कि वी कैन नॉट कॉल दैट दीज रूल्स आर रॉन्ग, लेकिन हॉस्टल के अंदर ऐसे रूल्स होते हैं. सो देयर वर सम रूल्स ऑफ सिटिंग, देयर वर सम रूल्स ऑफ ईटिंग. ये एक छोटी बच्ची थी. शी हैड नेवर सीन ऑल दीज काइंड्स ऑफ रूल implemented. बच्चे बच्चे कैसे होते हैं? केयरलेस होते हैं. But when she entered the dining hall, she just pulled the chair and sat on it. उसने जो है चेयर को खींचा और वो बैठ गई आराम से. On the other hand, when she looked around, she saw everyone else was standing. सब खड़े हैं. अब इसको थोड़ा बुरा लगा, थोड़ा embarrassing रहा. She was supposed to stand that the bell rang and everyone sat. अब ये जो है दोबारा मतलब कि कुछ आवाज आई. देयर वाज सम नॉइज, अ मैन कॉलिंग. किसी इंसान के जोर से बुलाने की आवाज थी. आउट ऑफ क्यूरियोसिटी शी स्टार्टेड लुकिंग. बाकी सारे बच्चे अपना सर झुका के बैठे हुए थे, बट शी वाज लुकिंग क्यूरियसली कि व्हाट इज हैपनिंग, हु इज कॉलिंग. और वहां पर जो वार्डन थी, शी वॉज जस्ट ग्लेयरिंग एट हर. उसको घूर रही थी. शी वॉज स्केयर्ड. नाउ द बेल रैंग and everyone started taking off their forks and spoons, and she was scared to death कि मैं फिर से कोई गलती ना कर दूं. So that is what she calls formula, eating by formula. ये आपके पेपर में एक बार मतलब कि in the boards it has come. What does Zitkala mean by eating by formula? मतलब देयर वॉज एवरीथिंग वॉज स्टैंडर्ड. बेल बजेगी तो बैठना है, बेल बजेगी तो यू हैव टू पिक द मतलब की स्पून्स एंड यू हैव टू ईट. एंड दिस शी सेज इज वेरी सप्रेसिंग. बच्चों को देयर शुड बी फ्रीडम ऑफ ईटिंग. यहां पर शी
says such kind of discipline at such an age was very. While she was coming, बाकी सब लोगों ने मोकेन्स पहन रखे थे, तो they were not making the noise, but she was having the shoes which was making noise. तो she felt कि all these, मतलब इतना restrictions is not necessary. Moreover, वहां पर जो seniors या फिर those who belong to the British English, they were all wearing tight clothes, immodest, but still they were trying to suppress these kids. अब इन बच्चों को जो है वो थोड़ा स्ट्रिक्ट ले रहे थे, जो उसको अच्छा नहीं लिया, मतलब शी डिड नॉट लाइक द स्ट्रिक्ट रेजिम ऑफ द स्कूल. एग्जाम का ही ये वर्ड है, दिस इज अ वर्ड, द स्ट्रिक्ट रेजिम. रेजिम मतलब द रूल्स, विच शी कॉल्स ईटिंग बाय फॉर्मूला. नाउ ये तो हो गया. उसके बाद ये लोग अपने रूम में गए. दे ऑल वेंट बैक टू देयर रूम. वहां पर उसकी जो फ्रेंड थी, शी टोल्ड, उसकी जो फ्रेंड थी ज्यूडविन, जिसका नाम था ज्यूडविन, शी टोल्ड दैट द लॉन्ग हेयर वुड बी कट. जिनके बाल लंबे हैं उनके लंबे लंबे बालों को काट दिया जाएगा, विच इज अ रूल ऑफ द स्कूल, बिकॉज दे आर इन द स्कूल में शॉर्ट हेयर रखा जाता है. ये सुनकर जितकला वॉज टेरिफाइड. जितकला वॉज पेट्रिफाइड. शी वॉज टेरिफाइड लुकिंग एट दिस. मतलब ये वाला सुनकर. वाई, आपके पेपर में ये क्वेश्चन कई बार आया है कि what were the reasons that she did not want to cut her hair. तो उसकी जो मदर थी, जिनके साथ वो सबसे ज्यादा क्लोज रही है, उस उनके अकॉर्डिंग जो आपके प्रॉप हेयर होते हैं, छोटे कट हेयर होते हैं, दे आर द सिंबल ऑफ ग्रीफ. मतलब किसी के मरने पर बाल कटवाते हैं, या फिर कोवर्डाइज और डिफीट. मतलब अगर आप हार गए, सोल्जर जब हार जाते हैं तो उनके बाल काटे जाते हैं, या फिर डरपोक होते हैं तो उनके बाल काटे जाते हैं. सो अकॉर्डिंग टू हर मदर, दीज वर द रीजंस. उसकी जो मदर थी उन्होंने ये रीजंस दे रखे थे कि ईदर इट इज अ सिंबल ऑफ ग्रीफ, डेथ पे काटा जाता है, कोवर्डीज और डिफीट. एंड इसको लगा कि भाई मैं तो ना ही किसी के डेथ को मोर्न कर रही हूं, और ना ही मैं जो हूं कॉवर्ड हूं, और ना ही मैं हारी हूं, तो व्हाई शुड माय हेयर बी कट. सो शी डिड नॉट वांट टू कट हर हेयर. शी टोल्ड जुडविन दैट शी वुड रेसिस्ट. शी वुड रेसिस्ट. तो जुडविन जो है, एक्चुअल में शी न्यू सम इंग्लिश वर्ड्स, तो उसने ये बात सुनी थी. इसको तो इंग्लिश नहीं आती थी, तो उसने, जुडविन ने कहा, दे आर वेरी पावरफुल एंड यू वुड नॉट बी एबल टू रेसिस्ट देम. लेकिन इसको अपने अंदर ये चीज थी कि शी वुड नॉट अलाउ देयर हेयर. क्यों? उसका मानना था कि बाल मेरे हैं, उसे मुझे कैसे रखना है, इट शुड बी माय डिसीजन. व्हाई समबडी इज फोर्सफुली कटिंग माय हेयर, विच इज नॉट राइट. अब ये इसने क्या किया, बच्ची थी, शी डिड नॉट नो व्हाट टू डू. उसको जो उस वक्त में समझ आया उसने वो किया. शी जस्ट hid inside a room under a bed. वो जाकर एक रूम के अंदर जो है बेड के नीचे छुप गई. उसको लगा थोड़ी देर के लिए सब लोग आवाज देंगे, उसके बाद वो मतलब कि सब चले जाएंगे, थोड़ी देर बाद इधर उधर हो जाएंगे. बट पता नहीं क्या हुआ. द लेडीज हु वर सर्चिंग फॉर हर, दे ऑल केम इनटू द रूम. उन्होंने कर्टेन खोला एंड फाउंड हर अंडर द बेड. उसको नीचे जो है मतलब वो मिल गई. अब उसने अपनी पूरी ताकत लगाई. शी रेसिस्टेड बाय बाइटिंग, बाय पुटिंग हर हैंड्स एंड लेग्स. उसने सब कुछ किया, बट शी वॉज टाइड टू अ स्टूल. उसको जो है एक स्टूल में बांध दिया गया. एंड हर हेयर वॉज कट. और उसके जो बाल थे उसको काट दिया गया. और ये बात उसको बिल्कुल अच्छी नहीं लगी. उसको ऐसा लगा
एज इफ शी इज वन ऑफ द कैटल, वो उन मतलब कि कैटल में से एक है, गाय बकरियों में से एक है जिसको चरवाहा अपने मतलब चला रहा है, और वो भी चलते हुए जा रहा है, उसकी अपनी कोई मर्जी नहीं। शी वॉज फीलिंग वेरी सैड, शी वॉज फीलिंग अलोन, लोनली, उसको अपनी मदर की याद आ रही थी। उसको ऐसा लग रहा था कि दिस इज नॉट कटिंग ऑफ हर हेयर, बट इट इज द कटिंग ऑफ हर सोल। ये एंड में वो बोलती है, दिस इज नॉट द कटिंग ऑफ द हेयर बट इट इज द कटिंग ऑफ द सोल। व्हाई? बिकॉज इट वॉज सम सर्टेन थिंग्स आर inside our mind, certain things we carry as a culture, certain things we carry as memories, and when these things are snatched from us, they have a long impact. और ये सबके साथ होता है, ऐसा नहीं है कि दिस इज विद बामा, सॉरी जितकलासा, इट कैन हैपन विद एनीवन. If you have been told something like that, and if you don't, if you somebody is telling you against that, you will not be able to move against the motion. एक क्वेश्चन इसमें आया था कि जो ये कहानी है इसके अंदर अगर रूल्स रखे थे, डिसिप्लिन रखा था स्कूल के अंदर, या हेयर को काटना एक मतलब कि वॉज देयर मतलब कि कस्टम, तो इज इट रॉन्ग? तो नॉट एट ऑल. इवन इन most of the boarding schools, children normally have short hair. That is because long hair को hold करना difficult होता है. And definitely discipline is very important. लेकिन जब discipline को हम impart करते हैं ना, तो there is always, we need to impart it gradually. When we are dealing with kids of a tender age, छोटे छोटे बच्चों को, तो हमें उनके according we need to work out. A child who is 17 years, a child who is 14 years, and a child who is 8 years, they are different in their perceptions, and we need to deal them accordingly. Moreover, ऐसे पकड़कर बाल काटना, it is inhuman. So this, ये जो इंसिडेंट था वो उसके दिमाग में बैठ गया. उसको ऐसा लगा कि these people they are more, अपने आप को जो है they think superior. Since at that time she was unaware of English, she was unaware of English. Later on उसने इंग्लिश को अपना जो है एक टूल बनाया. She got education and she expressed her views about all these mishaps through her literature. उसने लिटरेचर के थ्रू, आपके जो पेपर में आता ना, हाउ डिड दे फेस इट, उन्होंने उसको कैसे फेस किया था, तो उन्होंने ऐसे ही फेस किया था कि एजुकेशन को उन्होंने अपना टूल बना लिया था. दे हैड मेड एजुकेशन एज ए टूल, और उन्होंने उसी एजुकेशन के थ्रू उन चीजों को ओवरकम करने की कोशिश की. सो दैट इज द स्टोरी ऑफ जितकला सा, कटिंग ऑफ माय हेयर. The next one which we are talking about is a very sensitive topic, I can say, that is casteism. And in India, casteism is rampant. अगर मैं कहूं कि it is rampantly practiced in India, so that is not wrong. हमारे यहाँ पर it is, and casteism is unique to India. और किसी कंट्री के अंदर आप कास्टिज्म के अकॉर्डिंग नहीं होता, लेकिन हमारे यहाँ पर इट इज देयर. अनटचेबिलिटी इज स्टिल अ कर्स. हमारे यहाँ पर जो अनटचेबिलिटी है, इट इज स्टिल अ कर्स. एंड व्हेन अ चाइल्ड एनकाउंटर्स सच कर्स एट अ वेरी यंग एज, वो बच्चा बड़ा होते होते he or she may develop a number of psychological feelings. Dr. Ambedkar. Dr. Ambedkar, when he was young,
he also had to face this kind of discrimination. उनकी ऑटोबायोग्राफी में लिखा हुआ है कि when he was young, तो they were asked to sit at the back of the class. They were not supposed to sit on the benches. They were supposed to sit on the floor. तो ये जो छोटी छोटी सी चीजें थी जो आपको ये बताने की कोशिश करती है कि आप हमारे जैसे नहीं हो, वो बच्चे के दिमाग में हो सकता है इन अ नेगेटिव वे वो बीज बो जाए। हो सकता है कि वो बच्चा उस नेगेटिव बीज के साथ बड़ा हो एंड द चाइल्ड में बिकम अ रिबेल। ये स्टोरी इज ऑल अबाउट मिस्टर मतलब कि बामा। बामा जो है, शी वॉज अ स्मॉल चाइल्ड, बहुत छोटी सी बच्ची, एंड उसका जो स्कूल था, डिस्टेंस बिटवीन हर स्कूल एंड होम जो था, दैट वाज ऑफ 15 मिनट्स की वॉकिंग डिस्टेंस। बट शी टुक अराउंड half an hour to walk. But she took half an hour to walk. और आपके पेपर के अंदर यही क्वेश्चन आता है कि जब उसका स्कूल 15 मिनट्स की वॉकिंग डिस्टेंस था तो उसको आधा घंटा क्यों लगता था, उसको आधा घंटा क्यों लगता था। सो बिटवीन द स्कूल एंड हर होम there were so many things, a market, एक पूरा, and she would be watching each and everything that came in her way. ये एक बहुत ही, यहीं पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हाउ शी केम अक्रॉस दिस, मतलब कि जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो कैसे इसने देखा। While crossing this road, स्कूल से वापस जाते हुए, शी वुड बी लुकिंग द मंकी चार्मर, द स्नेक चार्मर, देन द होटल जहां पर कॉफी को ठंडा गर्म किया जाता था, गर्म कॉफी को ऊपर से मतलब कि बहाकर, एक बड़ा मतलब टेक्निक होता है इन तमिलनाडु वो। देन द डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेवरीज, जैसे पकोड़े वगैरह होते हैं वो तले जा रहे हैं। समवेयर द लीडर इज गिविंग द स्पीच, समवेयर देयर इज अ मतलब कि फेस्टिवल गोइंग फॉर द इन द टेम्पल, सम ऑफरिंग्स आर देयर, कुछ चढ़ावा चढ़ रहा है। तो ऑल दीज कैप्चर्ड हर अटेंशन, ऑल दीज थिंग्स कैप्टिवेटेड, या फिर उसके जो लेग्स थे उसको पुल करते थे, मतलब वो पकड़ के रखते थे। आपके पेपर में ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। एंड शी वुड वॉच देम वन बाय वन, एंड आराम से वो घर पहुंचती थी। 15 मिनट के रास्ते को वो आधे घंटे में तय कर कर घर पहुंचती थी। So this was her routine and she used to enjoy everything and she used to think about all this कि क्या है, मतलब all these were amusement, उसके लिए ये सब चीजें एक amusement थी। छोटा सा बच्चा है, वो देख रहा है कि कटहल के जो बीज हैं they are being, मतलब उनको रोस्ट किया जा रहा है। इन तमिलनाडु it is very common, and this story is about a South Indian village. This story is about a South Indian village. तो वन डे व्हाट हैपेंस इज, व्हाइल शी वाज कमिंग, वो वापस आ रही थी, ऐसे ही आ रही थी, तो सडनली शी सॉ एन ओल्ड मैन ऑफ देयर कास्ट, उनके कास्ट का एक बहुत ही बूढ़ा आदमी was holding something. He was holding a bag kind of thing in a funny manner. बड़ा ही फनी मैनर में उसने उसको जो है पकड़ा हुआ था। He was holding it with a string of his hands. अपने हाथों के स्ट्रिंग से उसने पकड़ रखा था। बैग को देखकर उसे समझ आ रहा था कि देयर इज समथिंग ऑयली स्नैक्स उसके अंदर है। सिंस द मतलब वो जो ऑयल था वो बाहर आपका ब्लोट हो रहा था, तो उसने देखा कि ये कुछ ऑयली स्नैक्स है। लेकिन इतना बूढ़ा आदमी उसको अपने दूर रखकर ऐसे पकड़ के आ रहा था, तो शी फाउंड इट वेरी फनी।
एंड शी वॉज फीलिंग लाइक लाफिंग लाउड, जोर जोर से हंसने की उसको उसका मन कर रहा था. देन द मैन वेंट एंड गेव दैट टू द लैंडलॉर्ड जो वहां बैठा हुआ था, वो जो स्नैक्स थे उसको उसने जो है लैंडलॉर्ड को दिया. लैंडलॉर्ड ने ना कुछ थैंक यू बोला ना कुछ, ही स्टार्टेड ईटिंग. एंड दिस मैन वाज जस्ट अपने जो आर्म्स है उनको फोल्ड करके वहां पर सर झुका के खड़ा था. इसको ये सारी बातें समझ नहीं आई. इसको सिर्फ इतना लगा कि एक बूढ़ा आदमी ऐसा काम क्यों कर रहा है. एंड शी वॉज फीलिंग लाइक लाफिंग. व्हेन शी केम टू हर होम बैक, शी laughed a lot and told this funny incident to her brother. और ब्रदर को हम लोग तमिल में बोलते हैं अन्ना. उसने अपने भाई को ये सारे इंसिडेंट्स जो है उसने नरेट किया. शी नरेटेड दिस फनी इंसिडेंट, मतलब उसके लिए दैट वाज फनी. उसने वो जो इंसिडेंट है उसने उसको जो है अपने ब्रदर को बताया. बट द ब्रदर सेड, जो अन्ना था उसने कहा दैट it was the practice of untouchability. And since they belong to a downtrodden community, तो वो लोग untouchables हैं. इसीलिए the man was holding that bag away from his body so that it does not pollute the snacks. तो अगर स्नैक्स के ऊपर उसके बॉडी लग जाएगा तो वो पल्यूट हो जाएगा, इसीलिए उसने उसे दूर रखा हुआ था. सो दैट इट डजंट, और इसलिए उसको स्ट्रिंग से पकड़ा हुआ था, पूरे हाथों से नहीं पकड़ा. हियरिंग दिस शी वॉज फ्यूरियस. ये बात सुनकर उसको एकदम गुस्सा आ गया. एक्सक्यूज मी. शी फेल्ट शी शुड गो स्नैच दैट स्नैक्स, और उसको पूरा हाथ लगाए और बोले अब खा के दिखाओ. उसने कहा कि जो हमारे एल्डर्स हैं, व्हाई दे आर वर्किंग एक्स्ट्रा फॉर दीज पीपल. अगर वो लैंडलॉर्ड है तो हमें उनके फील्ड में काम करना चाहिए, अपना पैसा लेना चाहिए, घर आना चाहिए. व्हाई डू वी वर्क एक्स्ट्रा, उनके पर्सनल काम क्यों कर रहे हैं हम. तो अन्ना जो है उनके ब्रदर, उन्होंने उसको कंसोल किया एंड बताया उसने कि अनटचेबिलिटी इज अ रैम्पेंट प्रैक्टिस. इवन उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था. जो उसका ब्रदर है, ही स्टडीड आउटसाइड, मतलब वो सिटी में पढ़ता था. तो वंस इट वाज दैट ही हैड गॉन टू अनदर विलेज, और वो वहां से वापस आ रहा था. तो जो लैंडलॉर्ड के इंसान थे, दे स्टॉप्ड हिम. उससे उसका नाम पूछा. अब नाम से तो किसी का कास्ट हमें पता नहीं लगता है, नेम कैन बी एनीथिंग. देन दे आस्क्ड then they asked the street in which he lives. ये आपके पेपर का क्वेश्चन है कि उससे पूछा कि वो कौन से स्ट्रीट में रहता है. ऐसा क्यों पूछा गया? बिकॉज द स्ट्रीट्स इन मोस्ट ऑफ द तमिलनाडु बेल्ट, they are divided on the basis of your caste. जो स्ट्रीट्स होती हैं दे आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट. तो आपका स्ट्रीट पता लग जाएगा तो उनको जो है आपका कास्ट भी पता लग जाएगा. He told that if she wants to earn name and fame, if she wants to earn name and fame, then she must make education as a friend. She must study hard. अगर वो पढ़ाई करेगी, आगे जिंदगी में अच्छा कुछ करेगी, if she attains good position, then people would automatically become her friend. क्योंकि हम ये थोड़ी देखेंगे कि भाई जो डिप्टी कलेक्टर है वो अनटचेबल है या फिर वो ब्राह्मण है. हमें तो काम करना है.
वुड वी गो एंड आस्क कि डॉक्टर कौन से कास्ट को बिलोंग करता है? वी वुड नेवर आस्क. डू वी आस्क द लॉयर्स विच कास्ट दे आर? नो. बट इट इज ओनली व्हेन वी कम टू नो. तो उसके जो ब्रदर है, ये पेपर का क्वेश्चन है कि व्हाट डिड द ब्रदर एडवाइज, व्हाट डिड अन्ना एडवाइज. आपके पेपर का जो क्वेश्चन है वो ये है कि उसके ब्रदर ने बोला कि इफ यू वांट टू अचीव नेम, फेम, फ्रेंड्स, देन मेक एजुकेशन योर टूल. बामा को ये बात बहुत अच्छी लगी. लेटर ऑन शी टॉप्ड हर स्कूल, शी गॉट वेरी गुड ग्रेड, शी गॉट मेनी फ्रेंड्स एंड लाइफ के अंदर शी अटेन व्हाट शी वांटेड. बामा सदर्न इंडिया के अंदर इज अ वेरी फेमस राइटर, और उनकी राइटिंग्स में आपको हमेशा कास्टिज्म, उससे जो जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स हैं वो आपको नजर आती है. बीइंग अ तमिलियन आई कैन कोरिलेट इट वेरी नाइसली. शी इज मतलब कि शी यूज्ड टू राइट इन मेनी ऑफ द मैगजीन्स एंड ऑल आल्सो. सो दैट इज व्हाट वी से मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड. इन दोनों में, जितकला सा एंड बामा, दोनों ने बचपन में कुछ ऐसा देखा था विच दे कुड नॉट टॉलरेट. लेकिन दोनों ने गलत रास्ता नहीं, एक सही रास्ता चुना टू express their views about such discrimination which had hampered their growth. So this is the chapter Memories of Childhood. Okay, ma'am. Interview as a part of literature has got a good, what we can say, relevance. अगर हम उसको लिटरेचर के पार्ट से देखते हैं तो इंटरव्यू हैज गॉट अ वेरी गुड रेलेवेंस की वी कम टू नो व्हाट इज एक्चुअली इंटरव्यू. जस्ट बिफोर योर क्लास आई वाज जस्ट स्पीकिंग टू माय मॉम एंड शी वाज टेलिंग अबाउट द मीडिया की. मीडिया में ऐसा बताया था, तो आई सेड कि डोंट गो विद द मीडिया बिकॉज टुडे मीडिया डजंट हैव दैट रिलेवेंस व्हिच वी यूज्ड टू हैव अर्लियर. जब मैं छोटी थी तो मेरे लिए न्यूज़पेपर एंड न्यूज वाज समथिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. अगर आज मैं कहती हूँ आई एम गुड एट आर्टिकल राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग, आई कैन राइट एनीथिंग डैम, तो दैट वाज ओनली बिकॉज मैंने मीडिया को अपना एक सपोर्ट बना रखा था. टुडे मीडियाज रेलेवेंस इज वेरी लेस, आई कैन से. आई वाज जस्ट टेलिंग हर अबाउट वन चैनल कि उस चैनल के अंदर क्या मतलब कि गलत चीज दिखाई हुई थी. That was ultimately something, I was shocked to see that news. It was written that one of the famous actress, TV actress is dead, जबकि वो बेचारी जिंदा है. And उसका funeral scene पूरा दिखा रहे थे. I don't know how they use all these techniques. I don't know. But that was something, very, किसी parent को सोचो कि वो ऐसा देखे तो उनको कैसा लगे. बट ऑन द अदर हैंड अगर हम लोग इन द रियल सेंस बोलते हैं तो मीडिया इंटरव्यू दीज हैव एन अनप्रेसिडेंट. आपके पेपर का क्वेश्चन, इनका जो इफेक्ट है दैट कैन नेवर बी, हम कह सकते हैं कि डिफीटेड बाय एनीवन. इट इज द वे वी कम टू नो अबाउट आवर सेलिब्रिटीज. It is the way we come to know about the people whom we follow. तो जो इंटरव्यू है आज की डेट पर, वी हैव लॉट्स ऑफ इंटरव्यूज. नाउ इट इज इजी टू गिव एन इंटरव्यू, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था. पहले बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता था. इंटरव्यूज वर पार्ट ऑफ योर मीडिया, पार्ट ऑफ अ पर्सन्स लाइफ, जब उसने लाइफ में कुछ अटेन किया था. इट वॉज नॉट लाइक एनी वन कैन गिव द इंटरव्यू, ऐसा नहीं होता. देर वर टाइम्स जब इंसान ने पूरा एक, मतलब द पर्सन हैज अटेन समथिंग इन द लाइफ एंड देन द पर्सन गिव्स द इंटरव्यू. तो इंटरव्यू इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. द फर्स्ट इज
impact of interview, and second is first part tells that in the olden days, जब बच्चा पैदा होता था, तो देयर वाज अ मिथ, एक मिथ होती थी कि बच्चे की फोटोग्राफ को नहीं लेते. इवन नाउ ऑल्सो वी हैव दीज काइंड ऑफ थॉट्स एंड दैट्स वेरी गुड ऑल्सो. इन साइंटिफिक वे रेज आर नॉट गुड. तो वो जो बच्चा, मतलब कि इट वाज लाइक, अगर आप बच्चे के फोटोग्राफ लेते हो, इट इज जस्ट स्टीलिंग हिज सोल. आप बच्चे की फोटोग्राफ नहीं ले रहे हो, आप बच्चे का सोल चुरा रहे हो. मतलब इट वाज समथिंग विच वाज अनएक्सेप्टेबल. तो द फर्स्ट पार्ट टेल्स दैट मेनी सेलिब्रिटी राइटर्स, हम लोग यहाँ पे सिर्फ राइटर्स के बारे में बात कर रहे हैं, दे डिस्पाइज्ड बीइंग इंटरव्यूड. आपके पेपर का ये एक क्वेश्चन है. उनको डिस्पाइज मतलब दे हेटेड बीइंग इंटरव्यू. उनको इंटरव्यू करना पसंद नहीं था. लाइक दे हैव गिवन मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ बिलो. देन मतलब कि रुडयार्ड किपलिंग, they have given a number of writers जिनका मानना था that interview is intrusion into your privacy. intrusion मतलब आपके privacy के अंदर unwarranted intrusion, यानी कि interference. उनको लगता था वो ऐसा है as if it is a thumbprint on your windpipe. अब व्हाट इज थंबप्रिंट ऑन योर विंडपाइप? मतलब सफोकेशन. अगर आप अपने ये उंगलियों को लेकर यहाँ पे अपने विंडपाइप पर ऐसे जोर से दबाओगे तो क्या होगा? आप मर जाओगे, आप सफोकेट हो जाओगे. तो उनको ऐसा लगता था इंटरव्यू इज समथिंग सफोकेटिंग. पेपर का बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन. इट इज लाइक इंट्रूडिंग इनटू योर प्राइवेट लाइफ. उनको लगता था कि जो इंटरव्यूअर है, समटाइम्स दे ask those questions which they are not supposed to. लेकिन उसके लिए उन्होंने कई एग्जाम्पल्स दिए हैं ऑफ मेनी फेमस राइटर्स. बट आयरॉनिकली इन्हीं राइटर्स में से कुछ ने बाद में खुद इंटरव्यू किया था. मतलब कैन यू इमेजिन, some of these celebrities interviewed other celebrities in the later stages. Means those who did not like to be interviewed, वो उन्होंने खुद जो है they had interviewed others. So मतलब what does it mean? What does it mean? It means कि interviewer has unprecedented position in the job, मतलब कि history, or you can say in the literature, in the media. मतलब इंटरव्यूअर का जो जगह है, उसका जो प्लेस है, दैट कैन नॉट बी टेकन बाय एनीवन. चाहे आप कितना मर्जी कह लो कि वी डोंट लाइक टू बी इंटरव्यूड, बट इंटरव्यू इज अ वे थ्रू विच यू आर क्लोज टू यूर पीपल. आपका जो रीडर है, आपका जो ऑडियंस है, आपका जो स्पेक्टेटर है, आप उनसे तभी तो पास में आ सकते हो व्हेन यू गिव योर इंटरव्यूज.
तो उसका कहने का मतलब है, जो फर्स्ट पार्ट है, हमेशा बच्चों को फर्स्ट पार्ट में बड़ी प्रॉब्लम आती है, तो इट्स नथिंग। उन्होंने सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है कि देर आर सो मेनी पीपल, लेकिन दे ऑल despise being interviewed, but in the later stages they themselves gave the interview. उन्होंने खुद ही इंटरव्यू लिया था। दैट शोज कि जो इंटरव्यूअर होता है वो जर्नलिज्म की, मतलब की दुनिया में, इन द वर्ल्ड ऑफ जर्नलिज्म, ही हैज एन अनप्रेसिडेंट प्लेस। उसका जो प्लेस है दैट इज अनडिफीटेड, because that is only through the way we are able to come up to know about our people whom we follow. पहले जमाने में इंटरव्यू वॉज रियली अ हरक्यूलियन टास्क। अगर कोई सेलिब्रिटी, वेदर ही इज अ राइटर और मतलब कि वेल नोन पर्सन, अगर उसका इंटरव्यू आता था तो पीपल यूज टू बी मैड क्रेज। द रीजन इज कि इट वॉज वेरी डिफिकल्ट एट दैट दोज टाइम्स टू गिव द इंटरव्यू। आई रिमेम्बर वी यूज टू हैव वन प्रोग्राम जब हम बहुत छोटे थे। तो there was one very famous actress, I think recently she passed away, तबस्सुम करके थी। तो she used to have one program, जैसे हमारा कॉफी विद करण आता ना, बिल्कुल ऐसा ही एक आता था। उसका नाम था फूल खिले खिले गुलशन गुलशन। जिस सेलिब्रिटी को बुलाती थी, उसके मूवीज के गाने और उनसे वो क्वेश्चंस पूछती थी। बट देयर वर सम actors who never came on those shows, क्योंकि उनका मानना था to give interview, to come on the TV was below their। आज उनमें से कई लोग खुद टीवी में खुद ही इंटरव्यूअर्स हैं। That is how, because today TV has become a mode। ऐसे कई लोग होते थे those who would never say anything in front of the camera। Today अगर आप नहीं बताते हो तो it becomes a problem। Recently, I was reading an interview of a person, I don't know, somebody, and that, I was really shocked to see that she said that now you are given the work on the basis of the followers you have on Insta. It's now not the part of TV stars, even the film stars also. How many people you are having? All the celebrities, irrespective of what field they are, वो कहते हैं आपके कितने फॉलोअर्स हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे तो भाई कोई फॉलोअर्स है ही नहीं, क्योंकि मैं तो किसी को फॉलो करने देती नहीं। आई जस्ट अलाउ ओनली दोज whom आई नो। तो ऐसे तो कभी हो ही नहीं सकता है कि वी कैन बी पीपल लाइक अस कैन एवर बिकम फेमस। ठीक है, हमें चाहिए भी नहीं, बस जनरल बता रही हूँ कि नाउ इट इज स्पार्क दैट वी नीड टू बी कनेक्टेड। तो हमारे पास अब कनेक्शन के लिए वी हैव द सोशल मीडिया, वी हैव अदर मीडियाज, बट उस वक्त में इंटरव्यू वाज द ओनली मीडिया एंड मेनी ऑफ द पीपल डिड नॉट लाइक टू बी इंटरव्यू। Yet, interviewer is the only person through which you come to know about people. If you want to talk about any great personality जिनको आप फॉलो करते हो, any writer, आपको कैसे पता लगेगा? How that person writes, how that person takes out time, ये सब तो through the interview पता लगेगा। तो that is the first part, जिसके अंदर उसने बताया है कि what is interview, why celebrity writers despise being interviewed, and why interview has an unprecedented position in the journalism world। जो हमारा सेकेंड वन है, इट इज एन एक्चुअल इंटरव्यू ऑफ अ पर्सन। और वो जो पर्सन जिसका इंटरव्यू लिया गया है, ही इज अ फेमस राइटर कॉल्ड अम्बर्टो इको। और उनकी उस वक्त में एक बुक पब्लिश हुई थी, नेम ऑफ द रोसेस। ये एक बुक उनकी पब्लिश हुई थी, और ये जो बुक थी, इट बिकेम द बेस्ट सेलर ऑफ दैट ईयर। उस साल वो सबसे ज्यादा बिकी थी। तो द राइटर दैट इज मुकुंद पद्मनाभन, हिंदू का जो के एडिटर थे, उनका नाम है मुकुंद पद्मनाभन। ही हैड इंटरव्यूड अम्बर्टो इको। तो जो सेकेंड पार्ट है
That is the part of the interview between Mukund Padmanabhan and Umberto Eco. ठीक है. एंड अम्बर्टो इको इज अ ग्रेट राइटर जिनकी उस साल बुक आई थी नेम ऑफ द रोजेस विच बिकेम द बेस्ट सेलर्स. अब इसमें से आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं. इस वाले पार्ट में आता है ये वाला, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थंब प्रिंट ऑन योर विंड पाइप. देन व्हाई इंटरव्यूअर हैज एन अनप्रेसिडेंट पोजीशन इन द जर्नलिज्म वर्ल्ड. ये दो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है. इस वाले में से आपके 2-3 क्वेश्चंस आते हैं. तो पद्मनाभन उससे सबसे पहले पूछता है कि यू आर राइटिंग सो मेनी थिंग्स, मतलब आप एक राइटर भी हो, एसेइस्ट भी हो, बच्चों के लिए भी आप लिखते हो, यू आर ऑल्सो अ प्रोफेसर. तो आप अपने आप को व्हाट डू यू मेक, मतलब यू आर राइटिंग फिक्शन, नॉन फिक्शन, यू आर राइटिंग एवरीथिंग, सो हाउ डू यू कनेक्ट योरसेल्फ. तो अम्बर्टो इको कहते हैं कि इवन दो आई एम राइटिंग सो मेनी थिंग्स, लेकिन मैं काम तो एक ही कर रहा हूं, और वो क्या है? राइटिंग. I may be writing article, I may be writing essay, I may be writing children book, but ultimately what I do is I am only writing. बट मुझे जो है अपने आप को एक लिटरेरी फिगर कहना ज्यादा पसंद है. द सेकेंड क्वेश्चन ही आस्क इज कि हाउ डज ही गेट सो मच ऑफ टाइम. उनको ये सारी चीजें करने के लिए, मतलब इतनी सारी चीजें करने के लिए, हाउ डज ही गेट द टाइम. तो वो कहते हैं कि आई यूज द इंटरस्टिस. ये आपके पेपर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. वो कहते हैं कि आई यूज द इंटरस्टिस, मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट. इसके लिए उन्होंने थोड़ा सा एलॉबरेट किया है, विच मे बी अ क्वेश्चन इन योर एग्जाम. वो कहते हैं कि अगर हम इस पूरी दुनिया को देखते हैं तो वी से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब कुछ है, लेकिन अगर हम इन सब चीजों को हटा दें यहां से तो द वर्ल्ड बिकम स्मॉल जस्ट लाइक अ फिस्ट. ये सिर्फ हमारी मुट्ठी जितनी छोटी हो जाती, यानी ये सब चीजें फालतू है. या फिर अगर हम इन सारी चीजों को हटा देते हैं तो द एक्चुअल स्पेस जो है वो हमारा डिक्रीज हो जाता. सिमिलरली वो कहते हैं आई रिमूव ऑल द एक्स्ट्रा स्पेस इन फ्रॉम माई लाइफ. उसके लिए वो एक एग्जाम्पल देते हैं कि से जो इंटरव्यूअर है वो ऊपर आ रहा है लिफ्ट से, ठीक है, उसने मुझे बता दिया कि आई एम कमिंग नाउ. इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर दैट पर्सन ऑन द सोफा, अच्छा वो आएगा, उतने टाइम में आई राइट एन आर्टिकल. यानी आई हैव मेड यूज ऑफ दैट इंटरस्टिक. वो जो बीच का पीरियड था, वेटिंग वाला पीरियड, उसको मैंने यूज किया फॉर राइटिंग समथिंग. तो आई गेट टाइम फॉर एवरीथिंग. This is one of the most important questions from this chapter. Most important and most of the time repeated from this chapter. अगर आता है तो ये वाला क्वेश्चन आता है कि what does Umberto Eco mean by the interstices? Means the empty space between two work. दो एक पीरियड है, दूसरे पीरियड के बीच में 10 मिनट का गैप है, उसमें होमवर्क कर लिया. You have cultivated the time, so you get time. बाकी बच्चे जब होमवर्क कर रहे होते हैं उस वक्त आपके पास टाइम होता है. Then he says what is your style of writing. जो next question वो पूछता है वो बोलता है what is your style of writing. And इसके लिए अम्बर्टो कहता है it is narration. वो कहता है I just narrate what I do with all the mistakes I do. मतलब मैं उसमें कोई ऐसा कुछ छुपाता नहीं हूं. Whatever I do, I just note it down. फिर वो अपना एक एग्जाम्पल बताता है कि जब वो डॉक्टरेट कर रहे थे तो थीसिस जमा करनी होती है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल क्या करते हैं, दे जस्ट कट एंड कॉपी. वो कहते हैं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने जो जो भी किया, मतलब उस थीसिस को करने के लिए वॉट एवर आई डिड, आई रिकॉर्डेड एवरीथिंग. रिकॉर्डेड मतलब मैंने सब कुछ लिखा. एंड मेरा जो प्रोफेसर था, मतलब अम्बर्टो इको का, ही सेड दैट
you have written everything and this shows you have not copied it, जैसे बाकी लोग करते हैं. तो कहता है whatever I do, I just narrate it. And perhaps that may be the reason of my success also. वो अपने एक फ्रेंड के बारे में बताता है जो कहता है कि who has never been successful as he wants to write creative writing. वो कहता है मैं कुछ भी क्रिएट नहीं करता, whatever I do, I just write. फिर द नेक्स्ट क्वेश्चन उससे पूछा जाता है कि हाउ डज ही कनेक्ट हिमसेल्फ. तो कहता है आई हैव क्लब्स, राइटर्स क्लब एंड ऑल, बट मुझे खुद को एक लिटरेट क्लब में रहना ज्यादा पसंद है. और एल्स मैं भी आप जैसा एक कॉमन इंसान हूं. आई ऑल्सो एंजॉय आफ्टर डिनर, आई ऑल्सो वॉच कॉमेडी. मैं भी कॉमेडी देखना पसंद करता हूं. आई एम नॉट अ सीरियस. The last question he asked is again a question of the board. What is the secret of the success of the book Name of the Roses? ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन रहा है बोर्ड में, पेपर्स में. एक ये वाला क्वेश्चन रहा है, सॉरी टाइम वाला, और एक ये वाला फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वन. तो वो कहता है कि इवन आई डोंट नो, इट्स अ मिस्ट्री. वो कहता है दिस पर्टिकुलर ये जो नेम ऑफ द रोसेस है, इट हैज गॉट सो मेनी थिंग्स. इसके अंदर मेटाफिजिक्स है, सिंबल लैंग्वेज है, समथिंग हिस्ट्री भी है. तो व्हाट इज मतलब कि दिस अबाउट, मतलब क्या रीजन है, वेदर इट इज बिकॉज ऑफ द मेटाफिजिक्स, इट इज बिकॉज ऑफ द टाइम पीरियड, व्हाट इज द रीजन. तो वो कहता है आई डोंट नो. जब मैं पहली कॉपी इसकी लेकर गया था टू अमेरिका टू अ पब्लिशर, मैं जब इसकी कॉपी लेकर गया था तो द पब्लिशर जो वुमेन थी वो इसकी बुक को देखकर हंस पड़ी. एंड शी सेड यू कैन नॉट सेल मोर देन 3,000 कॉपीज ऑफ दिस. ये 3,000 से ज्यादा ही नहीं बिकेंगी. लेकिन सिर्फ उस एरिया के अंदर ही इट वॉज सोल्ड इन लैक्स. इट इज अगेन अ मिस्ट्री. देन ही सेज that it may be the time period ki the book has been successful. What is the meaning of time period? Means अगर ये 10 साल पहले अगर ये आती तो शायद this may not have been successful, or maybe 10 years बाद आता तो भी नहीं होता. Reason? The readers. आपके रीडर्स 10 साल पहले भी सेम नहीं होते, 10 साल बाद भी सेम नहीं होते. So maybe that you have targeted the right readers. You have targeted the right readers. आपने शायद सही रीडर्स को टारगेट किया, इसीलिए that book became a book seller, मतलब कि the best seller. और else maybe 10 years पहले होता तो शायद ये नहीं होता, 10 साल बाद होता तो भी नहीं होता. And this is very true. This is very true. There are many things, many books, movies which were flop at their period, but later on they became successful. And that is because of the readers, audience, spectators. Maybe it was not pointing to that particular group, target group. So that is what he gives the मतलब वो जो है he gives it contribution कि वो कहता है कि that is the time period, the right readers. Maybe the same book, if it would have been published 10 years before or 10 years after, it would not have been the best seller. So this is interview जो है, it has got two parts. The first part is all about what is interview, how different celebrity writers had reacted to being interviewed, how they hated being interviewed. There are so many people like Tom Below, then Rudyard Kipling की जो wife थी वो जिन्होंने जंगल बुक लिखा था,
There were so many people who did not like to be interviewed. उनको लगता था it was intrusion into their private lives. It was like the thumbprint on their windpipe. Yet इन्हीं में से कुछ लोगों ने जो है, some of them had become interviewer in the later stage. The next is कि interviewer has an unprecedented position in the world of journalism. फिर उसके बाद जो ओरिजिनल इंटरव्यू है, दैट इज बिटवीन मुकुंद पद्मनाभन, द एडिटर ऑफ हिंदू, एंड अम्बर्टो इको, अ वेरी वेरी फेमस राइटर. उनकी बुक पब्लिश हुई थी, नेम ऑफ द रोसेस, एंड इट वाज रिगार्डिंग द सेम. सो देयर वर सम क्वेश्चंस व्हिच वाज आस्क्ड बाय हिम कि आप अपने आप को कैसे, मतलब कि हाउ डू यू फाइंड योरसेल्व्स, देन व्हाट इज, हाउ डू यू फाइंड सो मेनी, how do you write so many things together? What is the style of writing? Then where does he like to be with socialize? Then what was the secret of the book? Name of the Roses. ये जो है एक पार्ट था, एक एक्सर्प्ट था of that original interview. So as a part of your exam, these are some of the questions. There might be a question which may be, intermingled, कि आप एक इंटरव्यूअर हो and you have got an opportunity to interview गांधी जी, और आप उनको इंडिगो के बारे में आप उनसे पूछ रहे हो. This question is there in the मतलब की पार्ट. तो ऐसा हो सकता है. या फिर गांधी जी इंटरव्यूड सम पीपल मुकेश वाले में, मुकेश वाला जो चैप्टर है, तो ये ऐसे क्वेश्चंस आते. तो इंटरव्यू का मीनिंग क्या है, व्हाट एग्जैक्टली शुड बी इंक्लूड इन इंटरव्यू, because interview is a very important part of not journalism but literature. The right word, the right way, how you produce those ideas. आपका रिपोर्ट राइटिंग जो है वो एक इसी तरीके का, तो एक जर्नलिज्म का तो एक पार्ट है. तो दैट इज द चैप्टर, द इंटरव्यू.